کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. میں نے کہا جو تم نے ویڈیو بھیجی تھی وہ تو کافی اچھی ویڈیو تھی، وہ تو بڑے، وہ کہتا رہا میں نے اس لیے بھیجی تھی کہ آپ نے نہیں سننا. اچھا تو سننا شروع کر دیا. کرسچن بھی کھا رہے ہیں ساتھ میں، پھر تو ویسے سنی بھابی کا کنسیپٹ وہاں پہ ٹوٹ گیا. علی بھائی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ویسے تو نہیں میٹنگ ہو سکتی ان سے، لیکن یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہت ہی جو معاشرے کا جو سب سے ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، جو سب سے بیسٹ طبقہ ہے، جو فیوچر طبقہ ہے، وہ علی بھائی کا فالوور ہے. اور الحمدللہ اصل میں علی بھائی کا فالوور نہیں، وہ حق کا فالوور. وہ اصل. جی بھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ چودھری عبید گل. میں گجرات کا ایک گاؤں ہے، ایک چھوٹا قصبہ ہے کوٹلہ عرب علی خان. ہاں کوٹلہ عرب علی خان. جی جی کوٹلے کو کون نہیں جانتا جناب، کوٹلے کی مشہور شخصیت ہے نا آپ کے میں نے. جی جی بالکل. ہاں تو کوٹلہ ویسے بھی بہت مشہور ہے، ہم یہیں پہ جاتے ہیں انہی کے نام آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے مطلب جو پاکستان کے اندر بہت سارے فنکار ہیں وہ کوٹلہ سے یہی ہیں. اور میں پروفیشنلی میں ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر ہے جی میں ماشاء اللہ. پروفیشنلی ڈاکٹر ہوں. اور میری کچھ سٹوری کچھ اس طرح کی ہے کہ میں شروع سے ہی ایک مؤدب گھرانہ ہے، یعنی کہ تھوڑا بریلویوں کا ایک خاص ایک ہاں میرا سوال بھی یہی تھا. تو اس سے میرا تعلق تھا. لیکن میں نے جو اپنے پروفیشن میں جو میں نے کام کیا ہے وہ زیادہ میں نے دیوبند جماعت ان کے ساتھ کیا. اچھا مطلب میرا جو کولیبوریشن تھا میڈیکلی وہ زیادہ تر دیوبند تھے، اور ان میں کچھ آپ اہل تشیع بھی کہہ سکتے. صحیح ہے. میرا کچھ تعلق اس طرح سے اہل حدیث مسلک سے تھا کہ وہ کبھی کبھار مسجد میں ان کا آنا ہوتا تھا، تو ویسے ان کے ساتھ تعلق تھا. ٹھیک ہے. تو علی بھائی کو میں تقریباً آج سے 5-6 سال سے میں سن رہا ہوں، یعنی کہ یہ کوئی ریسنٹلی نہیں ہے کچھ ایسا. تو میں یہ ان کو جو ہے نا وہ کم از کم 5-6 سال ہو گئے ابھی سنتے ہوئے ان کو. تو تعارف کیسے ہوا یہ بھی ہمارا سوال ہے، یہ بتائیں تعارف کیسے کچھ اس طرح ہوا کہ میرا ایک دوست ہے سعودیہ میں، وہ بھی سعودیہ میں. ٹھیک ہے. وہ ایک تو ہم زیادہ تر سنتے تھے، ایک تو مولانا الیاس قادری صاحب کو، اور دوسرا ہم سنتے تھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. صحیح ہے. تو اب اس طرح کے رسالے ہمارے پاس ان کے منتھلی ممبرشپ پہ لگے ہوئے تھے کہ وہ منتھلی آتے تھے ہمارے پاس. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے مجھے ایسے ویڈیو بھیجی اور لنک بھیجا، تو وہ میں نے بالکل نظر انداز کر دیا وہ لنک جو تھا. تو پہلے انہوں نے ایسے لنک بھیج دیا مجھے، تو میں پہلے تو نہیں تھا سنتا، ایسے نیگیٹیولی سنتا تھا کہ یہ کون ہے جو کیڑے نکال رہے ہیں. اب پھر ہوا کچھ یوں کہ ہماری کچھ اسٹڈیز بھی ایسی تھیں کہ ہم زیادہ فوکس بھی نہیں تھے ادھر کر پائے، ہم اپنی جو دنیاوی زندگی ہے وہاں پہ بزی تھے. لیکن جب میں نے سننا شروع کیا اور جب میں نے اس چیز کو فالو کرنا شروع کیا، تو پھر اسی دوست کا کال آیا. اسی کا کال اس طرح کچھ آیا کہ میں نے جب اس سے بات ہوئی تو میں نے کہا جو تم نے ویڈیو بھیجی تھی وہ تو کافی اچھی ویڈیو تھی، وہ تو بڑے، وہ کہتا رہا میں نے اس لیے بھیجی تھی کہ آپ نے نہیں سننا. اچھا تو سننا شروع کر دیا. نہیں سننا. وہ مقیم ہے ابھی کافی عرصے سے مقیم ہے، وہیں پہ رہ رہے ہیں. اچھا. تو وہ میں نے اس لیے مجھے تھا کہ وہ اس نے بھیجیا کہ آپ سنو، لیکن میں جب اس ٹھیک سے سننے لگا وہ میں نے کہا اس لیے بھیجی تھی کہ صرف ان کو نہیں سننا. تو میں نے کہا کہ سننے کے میں کیا حرج ہے سننے میں. پہلے ہم اس چیز کا بہت احتیاط کرتے تھے کہ کھانا کھانے میں، لیکن جب ہم پروفیشنل لائف میں اسلام آباد میں رہا ہوں، میں مظفر آباد میں نیلم میں رہا ہوں کافی عرصہ ہاسپٹل کے اندر. تو اسلام آباد میں پنڈی 6 روڈ پہ ہاسپٹل میں کام کیا. تو پنڈی جو 6 روڈ ہے نا وہاں پہ رہا ہوں کافی عرصہ. تو وہاں پہ جب کرسچن بھی کھا رہے ہیں ساتھ میں، پھر تو ویسے سنی بھابی کا کنسیپٹ وہاں پہ ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ مجبوری تھی. ساری بات وہ مجبوری تھی توڑنا. تو وہ سنی بھابی کا جو فرق تھا نا وہ ختم ہو گیا وہیں پہ کہ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، کہ ابھی ان کے ساتھ رہنا مجبوری ہے. کام کرنے والے ساتھ کچھ عیسائی ہیں، کچھ یہودی ہیں، کام کرنے والے ساتھ میں، اب کیا کیا جائے. پھر سب سے بڑا کانسیپٹ کہ ہم نے ایسے کچھ ہوا کہ ہمیں جیسے
तरबियत थी, दीनी तरबियत जिसको हम कह सकते हैं, वो कुछ ऐसी थी कि अब काफिर भी आ रहा, हमने उसका भी ट्रीटमेंट करना है। हाँ, ऐसे नहीं कि बिल्कुल पहले तो हमें जो बताया गया था वो इस तरह बताया गया था कि अगर किसी काफिर को हाथ लग जाए अपने गुस्ल भी करना है, वुज़ू भी करना है। लेकिन अब हाथ लगा के दिन में हम उनको ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही। इलाज भी कर रहे हैं, अब क्या करें। तो फिर एक यहाँ पे कुछ इस तरह हुआ कि जैसे मेरा क्लिनिक हुआ तो वो जो बंद थे जब मैं प्रोफेशनल, अभी तो अभी स्टूडेंट अभी मज़ीद पढ़ रहे हैं, तो क्लिनिक जैसे मैंने स्टार्ट किया एज आ वो लैब में शुरू किया था लेबॉर्ट्री का। तो अब लेबॉर्ट्री के अंदर कुछ इस तरह का कुछ सीन था कि वहाँ पे वो सब वैसे ही, लेकिन एक चीज़ थी उनमें कॉमन कि वो पक्के बहुत थे, यानी कि वो अपने मनहज पे पक्के थे, वो हाल जुल नहीं उनका नहीं था सिस्टम, वो पक्के थे अपने ठीक है। काम। तो अब उनके साथ बात करना, उनके पास इल्म उनका ज़्यादा हमसे, वो उनके पास रेफरेंस भी ज़्यादा, हमारे पास रेफरेंस भी कम। हम अभी भी अब इतने यानी कि इतनी स्ट्रगल अभी तो कुछ भी नहीं हम समझते, इतने मतलब समझने के बाद भी अगर हम फिर भी जो है वो जामिया मस्जिद का जो मौलवी है नाम साहब, वो हमें चुप करवा देता है कि अब क्या बोले। ऐसे ही है, लेकिन रियलिटी यही है। लेकिन रियलिटी है, लेकिन वो देखें उसकी जो ताकत है ना वो उसका इल्म नहीं है, उसकी ताकत है जो उसकी फॉलोअर्स हैं जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। अब ये आज संडे है, ये मैं इस फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, इसी फ्राइडे की 2 दिन पहले कि एक मेरे साथ वो दोस्त भी अभी आया हुआ है। तो ना हुआ कुछ इस तरह के, वो मौलवी साहब तकरीर शुरू की, तो अभी वो स्टार्ट कर रहे तो वो आया, उसने सुनते शुरू कर दी रफ़ा दैन के साथ। अब हमारे एरिया में बरेली में रफ़ा दैन का कॉन्सेप्ट ही नहीं, उसको पता ही नहीं भी है क्या चीज़, मतलब ये क्यों है, ऐसा क्यों करते हैं। एक तो रफ़ा दैन भी करनी है, दूसरा यहाँ तक करनी है, उनका कॉन्सेप्ट था यहाँ तक करनी है यहाँ पे। तो अब हुआ कुछ यूँ कि मौलवी साहब को और ना और कोई टॉपिक नहीं मिला, उन्होंने ना यही शुरू कर दिया कि ना मैं यही अब रफ़ा दैन के ऊपर कि कोई बंदा हमें, वो कह रहे थे कि हदीसें तो मिल गई हैं रफ़ा दैन, लेकिन हुक्म नहीं बता सकता रफ़ा दैन करने का हुक्म है। अब हमें तो पता है कि बुखारी शरीफ जो 735 से लेके 739 तक, और 739 जो है उसमें कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि उन्होंने कहा कि जो है वो अलहम्द शरीफ ऐसे पढ़ो, रुकू ऐसे जाओ, सजदे ऐसे जाओ। तो वो कह रहे थे कि रफ़ा दैन नहीं उसमें आया। तो फिर हमने कहा कि अगर रफ़ा दैन उसमें नहीं आया उस हदीस में तो आप पहली करना भी छोड़ दो, पहले भी ना करो है। तो फिर उन्होंने जुम्मा वाले दिन काफ़ी गंदी गुफ्तगू की, बहुत गंदी। वो एक तो कहते हैं इल्मी बात है, चले वो अज़म हो जाए, उन्होंने काफ़ी गंदी गुफ्तगू की, घोड़ों की दुमें और जो है वो ये ऐसे मक्खियाँ मारना, और इस तरह की उन्होंने जो गुस्सा आ गया था ना कि ऐसा एक सिस्टम मेरा बना हुआ है, ये उसको ऊपर कैसे आ गया। तो इधर हम 2-4 ही हैं, तो मैं उधर उस जुम्मा में मैं मौजूद नहीं था। अच्छा, वरना हम हिम्मतकारी जाते हैं खड़ा होने की, तो हम हिम्मतकारी जाते हैं कि देखेंगे आगे जो होना है। तो वैसे जो था कि हमारे जो फैमिली सिस्टम है उसमें हमें घर से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई, प्रोफेशनली बहुत मुश्किलात पेश आई प्रोफेशन, क्योंकि जब आपका जो दीनी सिस्टम डिस्टर्ब होता है ना तो ज़िंदगी के जो बाकी मामलात हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें उनके साथ ऐसे मामलात, इर्द गिर्द के दोस्तों के साथ ऐसे मामलात करने पड़े कि हम अपने दुनियावी चीज़ें रखते हैं लेकिन दीनी चीज़ों पे हम नहीं करते। बिल्कुल सही। आपने नहीं मानना हमने ना मानना ना मानो, लेकिन इससे हमारी दूसरी चीज़ें वो डिस्टर्ब हो, अपने फैमिली ठीक है। आप 4 बंदों के अंदर आप वही काम करें जो करने आए हैं, ठीक है। अब ये बात है कि ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था, और ये ऐसा मोड़ है कि ये कुदरती तौर पे ये हमारी लाइफ सर्कल में ही आया, पहले नहीं था, ठीक है। अब अली भाई को मैं उस वक्त देखता था जब वो एक कमरा था, उस पर काफ़ी डेस्क लगे हुए थे। अली भाई उस वक्त वो मेरे पास फ़ोन भी छोटा था और वीडियोज आती थी, ठीक है। वो डेस्क वहाँ पर अकेडमी वाला वो कोई सीन नहीं था, लेकिन इनके साथ वैसी जान पहचान नहीं थी कि ये जेलम से हैं, ऐसे हैं, मतलब इनका कोई हिसाब वगैरह नहीं। बाकी हमारे जो सोशल और सोसाइटी के हिसाब से जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बर्डनेबल है, ठीक है। हमारे पास कॉन्सेप्ट एक तो चीज़ है ना कि
किसी को पता नहीं है, वो ज्यादा खतरनाक नहीं है कि जिसको पता नहीं है हम उसको बताएंगे तो क्या पता रिसर्च करें, तो हमें भी नहीं था पता था। अब जो खतरनाक चीज है ना वो ये है कि जिनको पता है, जैसे बिल्कुल उनको पता है, अब जब उनको पता है तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जान के नहीं बताना, उन्होंने जान के फिर उस चीज़ को उन्होंने पहले ही रात को ही ना तैयारी कर लेनी है कि ये चीज़ ये बोलेंगे, उसके जवाबी हमला मैंने ये करना। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। एक दोस्त वो आया जो कल जुम्मा वाले दिन, एक मेरा दोस्त वो आया, उसके अबू जो है वो मौलवी है, ठीक है, बाकायदा, तो वो चोरी छुपे हम आए हुए हैं किसी और ही काम तो फिर यही करना ना, जब बड़े ऐसे करेंगे तो हमने यही करना। अब हुआ कुछ यूँ है कि मैं अभी क्लिनिक स्किप करके आया हूँ। अच्छा। आज मैंने क्लिनिक, मेरी फ्राइडे को ऑफ होता है, संडे को ऑन होता है। सही है। अब मैंने क्लिनिक स्किप हुआ, यहाँ पे मैं दूसरी मरतबा आया हूँ। दूसरी मरतबा? एक मैं पिछले माह आया हूँ, पिछले माह में आया हूँ, अभी मैं दूसरी मरतबा आया। तो हम जो है वो अपने वो चीज़ें वगैरह वो स्किप करके आए हैं कि एक बार जो है वो दोबारा जाना है। लेकिन इसका हल यही है कि सिर्फ तबलीग करने का तरीका ये है कि कम से कम एक बार सबको बता दें और उनको एक ऐसे शक शुबे में डाल दें कि वो खुद अभी ढूंढे, क्योंकि आप जोर डालेंगे वो चीज़ टूट जाएगी, जितना जोर डालेंगे वो टूट जाएगी। वो उसको वो बिल्कुल, अब देखें ना, हमने जोर डाल के भी देख लिया, पहले हमने जो जोर डाल के देखा है उसमें ये हुआ कि वो अब लोग हमारे ज़्यादा मुखालिफ हो गए। हमारी फेसबुक पोस्ट के ऊपर पोस्ट कोई और होगी, नीचे उन्होंने ये बहस शुरू कर दी, ग्रुप्स के अंदर ऐसी बातें शुरू हो गई, ठीक है, टसलबाजी शुरू हो गई, ठीक है। हमारा जो सोशल और प्रोफेशनल जो दोनों चीज़ें थी वो आपस में मैरिज हो गई, डिस्टर्ब हो गई, ठीक। हम कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को अलग करें, लेकिन अगर हमने ये करना है तो हम इसी को भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो मैंने जो बात बताई है ये अभी रिसेंट बात बताई है, लेकिन जो पहले से होता है पहले हमने ये चीज़ें सब छुपा के रखी थी, किसी को कुछ नहीं। जी बिल्कुल ऐसे वो पहले, क्योंकि वो उतना अगर हम आज से 6 साल पहले नाम ले ली भाई का तो वो उतनी जान पहचान भी नहीं थी किसी को भी। अभी तो है जान पहचान है काफ़ी लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैंने पिछली बार ना हुआ कुछ कि एक पेशेंट था, तो फीमेल पेशेंट थी, तो वो उनका ऑपरेट हुआ तो वो जो है ना वो बेड में थी, वो काफ़ी दर्द की हालत में थी। अब हुआ कुछ यूँ कि मैंने जो अली भाई की पिछली बार जो तस्वीर जो मैंने ली ना, तो वो मैंने वॉलपेपर पे लगाई हुई। अच्छा। तो वो फ़ोन मेरे हाथ में रहने की आदत है, तो वो ऐसे ही ना वो ऑन हो गया। तो उन्होंने जब वो देखा ना, तो वो हालांकि वैसे वो रिश्तेदारों से भी कोई बात नहीं दिखा। अच्छा, जैसे उन्होंने देखा ना, उसने इधर इशारा करके कहा ये कादियानी मैंने कहा भाई ये मतलब कैसे होगा कि ये कैसे होगा, आप रेस्ट करें, आपका इस चीज़ का क्या लेना देना, ठीक है। उन्होंने कहा इससे दूर है ना, इससे दूर है ना। मैंने कहा अब तो हो गए मैंने कहा अब जो होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, अब वो है ना कि। लेकिन मैं ये एक आपके कैमरा और आपके चैनल के द्वारा अली भाई को ये पैगाम देना चाहता हूँ। वैसे तो नहीं मीटिंग हो सकती उनसे, लेकिन ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बहुत ही जो माशरे का जो सबसे एजुकेटेड तबका है, जो सबसे बेस्ट तबका है, जो फ्यूचर तबका है, वो अली भाई का फॉलोवर है। और अल्हम्दुलिल्लाह, असल में अली भाई का फॉलोवर नहीं, वो हक का फॉलोवर। वो असल में अली भाई का फॉलोवर स्टूडेंट, अली भाई का स्टूडेंट है जी जी। और वो जो है ना वो हक के बेसिकली फॉलोवर, ठीक है जी जी जी। अगर आज अगर अली भाई कोई भी बात गलत कर दे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर दे, हम खुद अली भाई के, यही तो खूबी है सर हमारे, यही करेंगे। हम आज अली भाई की मुखालफत में उतर आए, सच्ची बात है सर। हम इनको जो है ना, ये बात मैं भी कैमरा पे देख के कर रहा हूँ कि अगर आज अली भाई ने कोई भी गलत बात कर दी या ऐसी बात कर दी जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, तो देखें एक बात तो इन पे अली भाई के पे ये इल्ज़ाम लगता है कि ये अदब से नहीं बोलते, से ये वो। देखिए अदब का कोई इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है जी जी, वो किसी के पर्सनल मामला, वो किसी के आमद पे खड़ा होना या अदब करना, ये एक क्राइटेरिया डिफरेंट है, क्राइटेरिया डिफरेंट, ठीक है। अदब ना करना या बेअदबी करना, इससे इल्मी बहस नहीं हो सकती। बात जो करे उस पे बात करो यार, ये ठीक है गलत है, उस पे बात, ठीक, वो उसके मुताबिक इस तरह बात करेंगे, क्योंकि ये कोई सोशल डिबेट नहीं है, कोई सियासी डिबेट नहीं है जिसके ऊपर के जी एक जो बैठा हुआ है। अब
मुकाबले में उस्ताद शागिर्द आ गए हैं तो शागिर्द ने तो मुकाबला करना है, कोई भी गेम है, कोई खेल है, कुछ भी है, ठीक है। अब वो अदब में कहे कि मैं मेरा उस्ताद मुकाबले में इसलिए मैं हार रहा हूँ कि मैं अदब में हार रहा हूँ। अदब में हारना ये है ना, ये इस्लाम ने नहीं सिखाया कि अगर अदब है कोई बड़ा गलत बात कर रहा है या वो, इसलिए हम जो है ना वो नहीं हार नहीं सकते उसके ऊपर। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताएं कि रफ़ल यदैन जब आपने शुरू किया तो वो कैसे किया था? जिन साहब की वीडियोस देख के किया था? जी जी, मैंने एक तो वीडियोस तो उनको काफ़ी पहले काफ़ी जो है वो पहले देखा थी। मैंने इनका कॉन्टेक्स्ट देखा था जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बुक है गुनियतुल तालिबीन में नमाज का तरीका लिखा हुआ, सही है। फिर भी मैंने उस वक्त भी नहीं था शुरू किया, ठीक है। अब मसला ये था कि रफ़ा यदैन माशरे के अंदर शुरू करना ये बहुत मुश्किल बात है, ऐसे ये इतनी आसान बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब जो मेरे गांव की जो मस्जिद है ना, ये अभी मेरे गांव वाले भी ये देखेंगे वीडियो, तो ये मैं खुल खिला के बात कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ अकेला हूँ, ऐसे अकेला हूँ जो रफ़ा यदैन करता है। और मैं कभी भी आज तक डर के नहीं रफ़ा यदैन डर के नहीं। पहले पहले डर होता था, पहले डर था कि समझाने वाले भी काफ़ी थे, ठीक है, मतलब क्योंकि हम वो थे कि नमाज महीना नहीं रमज़ान में पढ़ लेते थे, सही बात है, नमाज की तौफीक नहीं थी होती कि ये ज़रूर। लेकिन ये आजकल तो बेनमाजी आम हो गई है, बिल्कुल जी, नमाज नहीं पढ़ते, ये बड़ी गलत बात है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें प्रॉब्लम थी कि दिन के हम आधा घंटा जोहर का, आधा घंटा जो है असर का, फिर आधा घंटा, हम इतना नहीं निकाल सकते। ये एक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हुई ना कि नमाज़ें जमा करने की। अब मैं क्लिनिक में जो है वो नमाज़ें जमा करता हूँ, बेशक सच्ची बात, जोहर असर जमा करते हैं, लोग नमाजी हो गए यार। ये लोगों को ऐसा अब वो सब 5 वक्ती जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। ये बड़ी एक ऐसी, और वैसे भी कुरान में जो आए 3 औकात हैं, ये कुरान का जो हवाला दे रहे हैं, कुरान में आई 3 औकात, बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ थी और इसकी वजह से, और सिर्फ फ़र्ज़, ये बड़ी ज़रूरी जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आई थी कि ये सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने हैं, बिल्कुल इस्तकामत मिल जाती है लोगों को। अब देखें ना, गिलास थोड़ा बड़ा है और ज़िंदगी के सारे काम भी चल रहे हैं, इधर 5 मिनट निकाले 2 टाइम के, उधर 5 मिनट निकाले था 2 टाइम के। तो अभी लगता है अली भाई का शायद टाइम हो गया, तो नहीं, हाँ टाइम वैसे पास ही है। अच्छा ये बताएं, फिर घर वालों को भी दावत दी, नमाज का तरीका का सब कुछ बताया, तो मैं एक्सेप्ट किया उन्होंने? मैं अक्सर नमाजें जो है ना, कई बार अक्सर नमाजें वो मैं घर में ही पढ़ता हूँ। अक्सर हो जाता है कि वो मस्जिद में टाइम निकल गया या काफ़ी लेट हो गया, तो मुझे फिर वो घर में ही पढ़ना पड़ता है नमाजें। जब घर में पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली दावत होती है। अभी हम आए हैं, जब जाएंगे तो बताएंगे कि हम कहाँ गए, तो घर वाले जो है ना वो उनको भी दावत है इस चीज़ की, और वो है ना वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अभी यार टाइम लगेगा, ये नहीं, हाँ सारी बात है। चलो जी, हमारा तो काम है दावत देना, हमारा सिर्फ एक काम है। वैसे तो मुफलिसी की जिंदगी है, मुफलिसी की जिंदगी गुजारे, बाकी जाएं जिधर जाना है। हमने तो आखिरी रिजल्ट यही है, एक बार उनको दावत देनी चाहिए, बाकी फिर जो होगा फिर वो देखा जाएगा बाद। ठीक होगा जी। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपका आना भी कबूल करे और अल्लाह ताला आपको इसी तरह इस्तकामत भी दे। अभी आप बैठे हैं, थोड़ी देर तक मजलिस स्टार्ट हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।